Hi everyone, I'm Ashdeep and welcome back to your logical reasoning session. Today we are going to do a very interesting topic and that is series. Now series is a very interesting topic because इससे related बहुत questions जो हैं हमारे competitive exams में पूछे जाते हैं. However, the difficulty with this topic is that sometimes you really put in your brain but हम फिर भी वो series को solve नहीं कर पाते. Now, here today I will share some nice tips with you which will make it easier for you to solve these kind of questions and then we'll practice some more. So, let's begin today's class. Now, this particular topic honestly has no basics itself. कोई ऐसे rules, कोई ऐसी concept, कुछ मतलब कोई formula. There is nothing to this topic to make it much kind of to make it clear to you कि कैसे इसे करना है. There are no rules to this. However, different questions practice करने के बाद कुछ एक patterns हैं जो हम notice करते हैं. There are certain things that we notice and which if we practice, at least it will fasten the process for us to get the answer. Now let's start. Now the first and the foremost thing with any series kind of question is there are two types of series. One could be only based on numbers and sometimes you have your alphanumeric. So numbers वाली होगी जिसमें हम सिर्फ numbers के साथ deal करेंगे and then we'll have our alphanumeric जहाँ पर हमारे पास हैं हमारे alphabets as well as numbers. Now let's talk about the number series because alphanumeric are at times kind of easy but numbers वाली can really trick us. Now numbers वाली series के अंदर we have two patterns हम जो usually observe करते हैं. Actually three patterns होते हैं. The first is that it could be an increasing series. That means कि जो numbers हैं वो increase कर रहे हैं. Then we have our decreasing series. That means जो numbers हैं वो decrease करते हैं. And then we have no pattern series. कई बार ऐसा होता है जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं चलता, कहीं नंबर इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, नो पैटर्न या हम इसको मल्टी पैटर्न भी कह सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों जो होती हैं इनके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं. या तो हम देखेंगे कि जो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीरीज है वो धीरे इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स या धीरे डिक्रीज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई कुड हैव 2, 4, 6, 8 इस तरह से वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. और आई कुड हैव समथिंग लाइक 3, 9, 80, 240. I'm just writing arbitrary numbers. That's not a series. But I just mean to say कि यहाँ पर ये slowly increase कर रहे हैं धीरे धीरे and यहाँ पर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा increase कर रहे हैं. I mean 3, 9, 80, 240. So the increase is a lot. So we have increasing and decreasing series. या तो slow increasing and decreasing या fast. Slow increasing इस तरह से, fast increasing इस तरह से and decreasing के लिए same. अब यहाँ पर इनका सिग्निफिकेंस क्या है? When I have a slow increasing series तो मोस्टली हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना एडिशन यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जहाँ मुझे दिख रहा है कि स्लोली इंक्रीज हो रहा है तो जो है नंबर्स इंक्रीज है. हो सकता है इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो 2, 4, 7, 11. तो यहाँ पर भी इंक्रीज ही हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, 2, 2, 2. सो इन दिस सीरीज ओनली 2 इज बीइंग एडेड. यहाँ पर जो है 2 फिर 3 फिर 4 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन द क्रक्स इटसेल्फ इज कि ये एक स्लो इंक्रीजिंग सीरीज थी जहाँ पे मोस्टली एडिशन का यूज होता है. डिक्रीजिंग के लिए भी यही है कि अगर स्लो डिक्रीजिंग है तो वहाँ पर हमारी सब्ट्रैक्शन यूज होती है. लेकिन जब हम फास्ट इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो फास्ट इंक्रीजिंग में आइदर वी मल्टीप्लाई नंबर्स और वी यूज स्क्वायर्स और वी यूज क्यूब्स. ये सारी चीज़ें अगर यूज़ होती हैं तो हमारी जो सीरीज़ है वो बहुत फास्ट इंक्रीज होती है. So
These are the type of increasing and decreasing series. Coming to the third one, we have no pattern और multi pattern. इसका मतलब है कि लेट्स से मेरी सीरीज है इस तरह से 0 2 3 4 6 6 9. सो नाउ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसी सीरीज़ है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं 0 और 2 के बीच में देखूं तो 2 का डिफरेंस है, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का, 4 से 6 के बीच में 2 का, 6 से 6 के बीच में 0 का, 6 से 9 के बीच में 3 का. सो यू कैन सी दैट इट इज़ इंक्रीजिंग धीरे धीरे कर कर, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा, क्योंकि बिल्कुल जो डिफरेंस है वो बहुत ही रैंडम है. सो यहाँ पर आपको कई बार देखना होता है कि पैटर्न जो है वो मल्टी पैटर्न भी चल सकता है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ का पैटर्न जो है वो हुआ कि 0 3 3 से 6 6 से 9, दैट मीन्स यहाँ पर 3 3 ऐड हो रहा है. और ये जो दूसरी सीरीज़ है वो साइमल्टेनियसली चल रही है, 2 से 4 2 का ऐड, 4 से 6 2 की एडिशन एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिवली 2 सीरीज चल रही है. So that means यहाँ पर कोई like clear pattern नहीं है, it's a multi-pattern series. So that can be another type. Alphanumeric series जो है उसके अंदर हम alphabets और हमारे numbers का जो है वो use करते हैं. कई बार numbers को हम जितने भी alphabets हैं उनको हम उनके numbers से denote करते हैं. For example हमारा जो A है वो 1 है and so on पूरा करते हुए Z which is 26. So इस तरह से different patterns ready होते हैं. Now again something to understand here is कि ये कोई rules नहीं है. These are not some fixed set methods. These are simple things जो आप observe करते हैं and over time you can understand. For example, after studying all of this, you know कि क्या क्या options हैं, कि आपको increasing series देखनी है, अगर आपको बहुत fast दिख रहे हैं numbers, बहुत ज़्यादा increase हो रहे हैं, so you know कि you can see कि you have to either check the multiplication या आपको squares देखने हैं. You will not spend time in calculating the additions. Now also it is imperative to understand कि with these kind of questions, particularly the entire topic series, the maximum number of questions you practice, you get better at it. Every question that you do, you will understand it is done in a different method. एक नया pattern पता चलता है, and that is why it is very essential to practice a lot of questions. क्योंकि उसके अंदर से आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से पैटर्न्स जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं. And no matter how many questions that I discuss with you in these sessions or even practice with you otherwise, फिर भी it is imperative कि आप जो हैं अपने questions खुद solve करें. So let's start with some questions that we practice in today's session. Let's go ahead. Alright. So यहाँ पर start करते हैं अपने simple question से. पहली series है मेरे पास 2, 4, 7, 11, 16, 22. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, एंड इंक्रीज जो है वो स्लो ही है, इट इज़ नॉट अ वेरी फास्ट इंक्रीज. सो दैट मीन्स आई विल जस्ट टेंड टू गो अहेड एंड सी कि कैसे एडिशन हो रहा है. सो लेट्स गो अहेड एंड सी. यहाँ 2 से 4 के बीच में एक +2 का एडिशन हो रहा है. 4 से 7 के बीच में इट्स अ 3 का एडिशन. 7 से 11 के बीच में इट्स अ 4 का एडिशन. 11 से 16 it is a 5 addition. 16 and 22 it is 6. So that means I have found my pattern. मुझे बताना है कि इसका next number क्या होगा. So obviously 22 I add 7 in it and I get my answer which is 29. So the next term is going to be 29. So this is a very simple, straightforward question. Obviously, you cannot expect these simple questions in your paper, but it is essential to start from here, start doing these kind of questions and build up your level to the complex questions as well. All right, ये easy से अब सीधा चलते हैं एक moderate question की तरफ. Now this is 5, 15, 60 and 300. Now look up closely. मैंने जैसे आपको समझाया था
कि ये ऐसी जहाँ पे इतना रैपिड इंक्रीज होगा, इंक्रीज है, रैपिड है, दैट मीन्स वी डू नॉट चेक एडिशन, इसको एडिशन चेक नहीं करेंगे. लेट्स गो अहेड एंड सी कि कुछ इसके अंदर हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, what we can see with with using our multiplication tools, squares and cubes. So you'll have to give your brain a little bit of thinking, see how it can be done. So यहाँ पर अगर आप सबसे पहले right off the back, see everybody thinks differently. So जब भी कोई series देखते हैं हर किसी को बहुत different चीज़ें दिमाग में आती हैं. सो फॉर मी राइट ऑफ द बैक मुझे देखकर इसको ये समझ आ रहा है कि ओके हाउ डू आई टॉक अबाउट दिस. मुझे इसके अंदर लग रहा है कि ओके सो यहाँ पर 5 है, ओके देन यहाँ 15, 60, 300. 300 में आई कैन थिंक ऑफ 3 के मल्टीपल्स 5 है एंड आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, बट अगेन यू हैव टू सी. सो नाउ only after understanding this I can write this 5. चलो ठीक है, 15 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है? 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 किसी का क्यूब नहीं है. सिमिलरली 60 किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, 30 किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है. नाउ देन वी गो अहेड एंड थिंक, सडनली आई रियलाइज कि लेट्स सी 5 एंड 15 में क्या रिलेशन है. सो 5 एंड 15 में ये रिलेशन है दैट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 gives me 15. Alright, let's move ahead. 15 and 16, do they share any relation? So 15 multiplied by 4 gives me 60. Alright, next up 60 and 300 में कोई relation है? 60 multiplied by 5 gives me 300. So now after doing all of this, can I follow a pattern? अब मुझे दिख रहा है कि ये previous number और 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, यानी कि जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. सो दैट मीन्स अब ये 300 और नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 6. सो 300 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स 1800. सो दिस इज माई नेक्स्ट नंबर. Now, I am not saying that these are questions which you'll get in one glance, but also this means that you do not require any prerequisite knowledge for this. Anybody, absolutely anyone can attempt these questions. You just need to get your brains running fast, need your presence of mind, need to, be very quick with these calculations. Also, I cannot emphasize enough that while sitting at home, when you're practicing these questions, please keep your calculators away. Calculators are your worst enemy. You do not need your calculators, because this will, once you start using calculators, once you get habitual of using calculators, it really slows you down. You have to be very good with your mental maths, and that is only possible when you keep it functioning. अब जहाँ अपने ब्रेन को कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट कर दोगे कि फटाफट मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ फ़ोन यूज़ करके, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. इट इज़ जस्ट गोइंग टू स्लोअर योर ब्रेन, इट इज़ गोइंग टू स्लोअर द फंक्शनिंग, एंड यू नीड टू मेक इट फास्ट एंड इवन फास्टर. DI related questions, data interpretation, which we'll be doing further, that is such an intensive kind of question, because एक section में से, एक DI के question में से you have 4 sub questions that are asked, and they are extensive calculations and you cannot use a calculator. So जब आप एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, then why even train your brain in the wrong manner? So that is why it is important to have your to have your numbers on your fingertips. Also, it is essential. Tables, I am assuming that everybody is good with their tables, with their multiplication. Also, you have to remember the cubes and squares of numbers up until at least 20. मतलब 20 तक bare minimum अगर आपको याद है squares and cubes, it will make your life easy, I promise. Whether it's DI questions, whether it's series, whether it's your quants, ये सारी अगर आपको अच्छे से आते हैं, squares and cubes, और ज़्यादा नहीं, अगर आप 25 तक कर सकते हैं better, 30 तक even great, but if not, then bare minimum till 20 you require your roots, your squares on your fingertips. Alright, so let's continue with these questions.
Okay, so I have a very different looking pattern here. Now the number is 0, 6, 24, 60, 120. Now again, इसको देख के राइट ऑफ द बैक आपके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे कि क्या हो सकता है. And by all means, when you're sitting at home, when you're practicing these kind of questions, I suggest go ahead, try डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स ट्राई करो, जो मर्जी करो, जो आपके दिमाग में आता है कि अगर आपको देखते ही आ रहा है कि 6 4s are 24 है, फिर 24 के साथ कैसे होगा, 60 into 2 120 है. Try all possible things that come to your mind, because the more you do it, the more you start to realize that what is here. Now let's solve the series. So 0, 6, 24, 60, 120. अगेन यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पर ना मुझे कोई स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ना मुझे कोई क्यूब्स दिख रहे हैं. +6 है, फिर 24 है, 60 है, 120 है. स्क्वायर्स का जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है. यहाँ पर इंक्रीज तो है और स्मॉल इंक्रीज भी नहीं है, बट इतना बिग इंक्रीज भी नहीं है. So I can say that probably I will rule out my squares and cubes, but let's stick to somewhat multiplication. Now when I see 6, now let's say 6, तो 6 को मैं कह सकती हूँ 6 into 1. okay, 24 जो है मुझे दिख रहा है 6, यहाँ पर मुझे 6 का टेबल कॉमन दिख रहा है. So let's start doing that. सो 6 जो है 6 into 1. ओके, ये 0 जो है वो 0 into 6 कर सकते हैं. सो लाइक 0 into 6 is 6 0. Then 6 into 1 or 1 into 6 is 6. Then 4 into 6 is 24. Then 10 into 6 is 60. Then 20 into 6 is 120. So that means कि यहाँ पर 6 का टेबल is fine. बट उसके बाद जो नंबर्स हैं, यानी 0, 1, 4, 10, 20, इनके बीच में कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा. सो 6 इज कॉमन, आई हैव गॉट दैट. बट उसके अलावा क्या पैटर्न हो सकता है? तो इसके लिए लेट्स ओपन दिस मल्टीप्लिकेशन. अब इस मल्टीप्लिकेशन को ओपन करते हैं. तो 0 तो चलो 0 हो गया, लेट्स लीव 0 असाइड. 6 की बात करते हैं. अगर मैं 6 की मल्टीप्लिकेशन को ओपन करूँ तो क्या मैं 6 की मल्टीप्लिकेशन को लिख सकती हूँ 2 into 3. ओके, लेट्स गो अहेड. 24 को देखते हैं. 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 24 इज 6 into 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, और सो दिस इज 6 into 4. सो 6 को मैंने 2 into 3 करा, एंड 4 को मैंने 2 into 2 करा. So if I want to do it, can I do something like this? 2 into 3 into 4. And suddenly, जैसे ही मैंने ये लिखा, I realized that अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ, so I am getting a pattern. 6 को मैंने लिखा 1 into 2 into 3, 24 को लिखा 2 into 3 into 4. Let's see अगर बाकी के नंबर्स फॉलो करते हैं. 60 को क्या मैं लिख सकती हूँ इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 into 4 into 5. Is it following? 4 5s are 20, 20 into 3, 60. Bingo. So I have hit the exact point, and after trying some multiple things, I have gotten my answer. 120. Again, इसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं ये पैटर्न फॉलो होता है नहीं. 4 into 5 into 6. So 20, 4 into 5 into 6. So I am getting 120. So I have understood the pattern, and that is कि यहाँ पर 1 into 2 into 3, then 2 into 3 into 4, 4 into 5, 3 into 4 into 5, and so on. So इसके हिसाब से अगर next number होगा, that will be 5 into 6 into 7, and that is going to be, yes, calculate quickly and you will get your answer. And the answer is going to be 5 6 are 30, 30 into 7, and that is 210. So my number is going to be 210. So this is the way we solve certain questions. Again, यहाँ पे हमने देखा कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हिट एंड ट्रायल करके commonalities निकाल कर, and that is how we figure these kind of questions.
Let's move on to the next part. So this is another part. Now give it a minute, give it a thought and see what happens. यहाँ पर जो है एक डिक्रीजिंग सीरीज है, 720 से शुरू होके धीरे धीरे कम हो रही है और कम भी एक स्पीड पर ही हो रही है. बट अगेन बी क्लियर विद योर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ताकि आपको ईजिली फिगर आउट कर पाओ कि यहाँ पर क्या क्यूब्स के साथ या स्क्वायर्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं. लेट मी गिव यू अ हिंट. अपनी जो ऊपर वाली सीरीज़ है, यानी कि ये वाली सीरीज़ जो हम कर रहे थे, इसी सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू करोगे देन सी व्हाट्स द आंसर लाइक. सो यहाँ 5 इंटू 6 इंटू 7 में 210 पे पहुँचे और 210 तो यहाँ भी है. लेट्स गो अहेड एंड सी कि इसका अगला नंबर क्या होगा, यानी 6 इंटू 7 इंटू 8 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 336. Yes. And so on if you go with the next one, that is 7 into 8 into 9, that will give you 504. And यहीं पे आगे जाके 720. That means ये 210 तक आ गया तो आपको इससे नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है. एंड 210 से पहले क्या नंबर आया था वो हमने इस सीरीज में देखा. दैट मीन्स द नंबर इज 120. सो ये सेम सीरीज़ थी जो ऊपर वाली थी, सेम सीरीज़, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में से डाल दिया. सो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट गेट योर ब्रेन्स टू वर्क इन अ मैनर कि आपको एकदम से आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे. सो दीज वर स्लाइटली ट्रिकी. लेट्स मूव अहेड टू फर्दर क्वेश्चंस. ओके, नाउ दिस इज़ अ फन क्वेश्चन. यहाँ पर है 4, 18, 48, 100, 180. What can you understand from this? Right off the bat देखते ही मुझे 4 का टेबल, 2 का टेबल ये सब याद आ रहा है. बट 4 का टेबल 16 के लिए नहीं वर्क करता. सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस एज मच एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या हो सकता है. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वील हैव टू सी अगेन कि ये फिगर इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. सो कॉमनैलिटीज़ 2 का टेबल, बट हम जो इंक्रीज़ देख रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट है. लाइक फ्रॉम 4, 18, 48, 100, 180 द इंक्रीज इज स्लाइटली फास्टर. सो लेट्स सी व्हाट वी रेकन. नाउ 4 की बात करते हैं. 4 को आई कैन राइट एज 2 इंटू 2. ऑल राइट, another way of writing this could be 1 into 2 का square. That is also one way to write. All right, 18 की बात करते हैं. 18 I can write as 3 into 6, 2 into 9. There are multiple ways. But अगर देखा जाए तो 9 अगर मैं इसे लिखूँ 2 into 9, okay, 2 के टेबल के हिसाब से. सो कैन आई राइट दिस एज 2 इंटू 9 को अगर कन्वर्ट करूँ तो 3 स्क्वायर. ओके, एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई माइट बी गेटिंग अ पैटर्न, बट लेट्स कन्फर्म. 48 को अगर मैं 2 के साथ लिखूँ सो कैन आई राइट दिस एज 2 इंटू 12. ऑल राइट, बट सॉरी 2 इंटू 24. ओके, 2 इंटू 24 तो ठीक है, बट अब ये 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा. लेट मी थिंक कि मैं किस चीज़ का और स्क्वायर लिख सकती हूँ. सो व्हाट इफ़ आई राइट 25 तो होगा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन इवन नंबर. सो 24 से छोटा स्क्वायर अगर मैं 16 कर दूँ, सो ओके 16. So 16 के साथ if I multiply 16 into 3, is that a possibility? Yes, that gives me 3 into 16, which is 4 का square. And suddenly I have seen a pattern coming through. यहाँ पर 1 into 2 square, 2 into 3 square, 3 into 4 square.
लेट्स कंफर्म कि ये आगे फॉलो हो रहा है। 100 को कैन आई राइट 3 की जगह यहाँ 4 इंटू 5 स्क्वायर? इज इट फॉलोइंग? सो 4 into 5 square, which is 25. So 4 into 25 is 100. So yes, it is 4. 180. Yes, again. Next is 5 into 6 square. So 6 square is 36. And 36 into 5 gives me 180. So I have hit a pattern. Now you can see कि यहाँ पर एक मल्टी पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि यानी कि 1 नंबर जो है फर्स्ट वाला वो अपना इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से n, एंड उसके बाद जो है 2 3 4 यानी n+1 नंबर इंक्रीज हो रहा है अपने स्क्वायर के साथ। सो ये जो है ये एक टाइप का पैटर्न है हमारी इस सीरीज का। इसी को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, लेट्स फाइंड आउट आवर नेक्स्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी 6 into 7 square, which is equal to 294. So that is how we solve this series. So we've already seen our increasing series, decreasing series and multi-pattern series. However, 5 या 6 questions कर लेना, it is not enough for you to actually understand कि ये questions कैसे करने हैं. So definitely practice as many as you can. Let's go ahead. Okay, so now we're coming to our alphanumeric series. Now alphanumeric series are pretty easy, उतनी complicated नहीं है, लेकिन जब भी आपके पेपर में कोई ऐसी अल्फान्यूमेरिक सीरीज आए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग शुड बी कि आप एक अपना ABCD का चार्ट जो है वो डेफिनेटली साइड पे कंस्ट्रक्ट करें. सो लेट मी गो अहेड एंड डू दिस. ऑल राइट, सो यहाँ पर मैंने अपना ABCD का चार्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया है. आई नो एवरीबडी नोज देयर अल्फाबेट्स वेल, बट जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन ना हो, 1 मिनट लगा के जस्ट टेक कपल ऑफ सेकेंड्स एंड राइट दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इजी वन, जहाँ पर एक सीरीज है AZBYCXD. राइट ऑफ द बैक देखते ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर A से B, B से C, C से D ऑल्टरनेटिव चल रहा है, तो दैट मीन्स एक और गैप होगा और उसके बाद E आ जाएगा. एंड यहाँ पे Z से Y, Y से X. सो X से पहले है W एंड आवर अल्फाबेट इज गोइंग टू बी W. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी सिंपल अल्फाबेट सीरीज. लेट्स गो अहेड एंड इंक्रीज अ लिटिल बिट. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं दिस सीरीज. So here I have E5V, J10Q, O15L, T20G, Y25B. Again, कई बार देखते ही विजुअली समझ आ जाता है, इसके अंदर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विजुअली पूरा, सिवाय एक चीज़ के कि ये 5, 10, 15, 20, 25. तो यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ आ रही है कि 5 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो जो सेंटर का नंबर है वो तो 30 होगा. Now, कई बार अगर आपको सिर्फ आंसर बताना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट समटाइम्स इफ़ यू हैव ऑप्शंस, तो ये होगा कि सारी की सारी ऑप्शंस में सेंटर नंबर जो है वो 30 ही दिया होगा. सो दैट विल नॉट बी समथिंग वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. सो अब 30 तक तो ठीक था. नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अल्फाबेट्स. अब यहाँ पर E, J, O, T आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो इस टाइम पे आपकी जो ये अल्फाबेट सीरीज़ हैं ये काम आती हैं. लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पर है E, ओके, एंड यहाँ पर है J. सो लेट्स सी कि इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं. E और J के बीच में है 1, 2, 3 एंड 4 अल्फ़ाबेट्स. सो E टू J के अंदर है 4 अल्फ़ाबेट्स. अब अगला J और O है. सो J ये रहा, O ये रहा. सो लेट्स सी इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4. ऑलराइट, सो J और O के बीच में भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं. O और T, ये रहा O और ये रहा T. इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं. 1, 2, 3, 4. ऑल राइट,
इसका मतलब मेरा पैटर्न जो है वो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर मेरे पास जो है 4 का डिफरेंस है. सो दैट मीन्स T और Y के बीच में भी 4 का 1 2 3 4 का डिफरेंस है. एंड अब जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा Y के बाद वो भी 4 के बाद होगा. बट नाउ यू वुड से कि Y के बाद तो ख़त्म हो गया है. सो व्हेन Y के बाद ख़त्म हो जाता है यू स्टार्ट फ्रॉम A अगेन. सो Y के बाद 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद आता है D. सो दैट मीन्स माई अल्फ़ाबेट इज़ गोइंग टू बी D. नेक्स्ट अप सिमिलर वे में हम करेंगे V और Q को देखते हैं. V एंड Q. मेरा V ये रहा और Q जो है ये रहा ऊपर. सो दिस इज़ माई Q एंड दिस इज़ माई V. सो आई हैव अ डिफरेंस ऑफ 1 2 3 4. अगेन अ 4 का डिफरेंस. आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट प्लीज़ ये नहीं कि पहले तो अल्फ़ाबेट्स के बीच में देखा एंड क्विकली डिसाइड. कई बार ज़रूरी नहीं है कि 4 का डिफरेंस ही हो. कई बार डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है, कई बार डिफरेंस इंक्रीज़ होता है, कई बार कांस्टेंट होता है. बट एटलीस्ट 2 कर तो मेक श्योर दैट व्हाट द डिफरेंस इज़ लाइक. सो Q तक हो गया. नाउ Q एंड L. So here is my Q and here is my L. So again I can see the difference is 1, 2, 3 and 4. So now it is confirmed that difference जो है 4 का है. So B के बाद backward चलेंगे 4. ये रहा मेरा B. Backward जाएंगे 1, 2, 3 and 4. So my alphabet is W. So the final answer I get is D30. आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं टिक करने के लिए या फिर आपको खुद फिगर आउट भी करना पड़ सकता है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ यूजुअल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारी नॉर्मल अल्फा न्यूमेरिक में नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास और दूसरे अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं. लेकिन यहाँ पर सिर्फ A और B और C दिया है जिसे हमें यूज़ करना है. नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे सो वी ऑलरेडी हैविंग अ पैटर्न. हमें एक ऑलरेडी लाइन दी है. नाउ वी हैव 4 अल्फ़ाबेट्स एंड 4 ब्लैंक स्पेसेस. हमें ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करने हैं एंड देन वी हैव टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मेरे पास है A B B. अगर मैं ये फिल करूँ तो पहले ब्लैंक स्पेस में मैंने डाल दिया A. ओके, देन आई हैव B A A. इस ब्लैंक स्पेस में मैंने डाल दिया नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दैट इज़ B. ओके, देन आई गो अहेड A. देन देयर इज़ अनदर ब्लैंक स्पेस. सो लेट्स पुट द थर्ड वन दैट इज़ B. देन आई हैव B A B. There is a blank space where I put in the last one that is A. And then there is A, B, A. Now एकदम से देखते ही बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है बट देन गो अहेड एंड सी कि इसके अंदर कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये A B B A, then B A A B, then A B B A, then B A A B, and you suddenly understand what the pattern is like. A B B A, then I have B A A B, then again A B B A, then I have B A A B. So I can see that there is a pattern. I am lucky enough कि मैंने ऑप्शन 1 से स्टार्ट करा और वो आंसर सही हो गया. बट लेट मी ऑल्सो जस्ट टेक एनी अदर एग्जाम्पल मैं ताकि आपको ये पैटर्न जो है क्लियर हो जाए. सो लेट्स से अगर मैंने डी ऑप्शन चूज़ करी. सो डी ऑप्शन के लिए आई हैव A B B फर्स्ट ब्लैंक जिसमें मैंने A डाल दिया ये वाला. देन आई हैव B A सेकेंड ब्लैंक है जिसमें मैंने अगेन A डाल दिया. देन A, देन नेक्स्ट ब्लैंक जिसमें B. देन आई हैव B A B नेक्स्ट ब्लैंक जिसमें B एंड देन आई हैव A B एंड इसको देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है. सो आई हैव A B B A, देन आई हैव B A A A A, देन आई हैव B B A B B A B A. So there is no pattern जो कि इसमें बन रहा है. That means this is the wrong option. The correct option is this. I suggest go ahead and try all the other options and इससे आपको समझ आएगा कि कैसे solve करना है.
So I hope that this topic of series was clear to you. You've been able to understand this topic. Again, I will recommend that go ahead, try as many questions as you can, because the more you practice, the more you get better with it and the more idea you get as to how you can practice different kind of questions. I'll see you for your next session. Thank you so much. Bye.